बोलना मत बीच में। Reptiles continue to be ectothermal since the ventricle was not completely partitioned by a septum and the blood is mixed in heart. तो reptile जो है ये ectothermal है. Ectothermal means that their body temperature depends on a environment. The internal fertilization evolved as a large cladoid shelled egg was laid on a land. देन इसका जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसमें एमनियन एलेंटोइस यॉक सेक्स evolved to enable the embryonic development in arid condition. These embryonic membrane help to bear a arid condition, that means a dry conditions. Ancestor of reptiles, the cotylosaurs were the most primitive stem reptiles that can evolve from a labyrinthodont amphibians in Carboniferous period. Labyrinthodonts means having a tooth and their enamel is folded. In Cotylosauria the first is Semoria जो कि lizard like दिखते हैं, उनके पेंटाडेक्टाइली लिम्ब है और शॉर्ट टेल है. और होमोडोंट, यहाँ पे होमोडोंट लैबिरिंथ टीथ होते हैं जॉज में. होमोडोंट का मतलब सेम शेप के. ओके, द प्रेजेंस ऑफ लेटरल लाइन, जो लेटरल लाइन की प्रेजेंस है, दैट कैन इंडिकेट्स इट्स एम्फीबियस हैबिट, दैट मीन्स इट लिव इन लैंड एंड वाटर ऑल्सो. स्कल वॉज मोनोकॉन्डाइलिक, the same thing, monocondylic, that means a single condyle is present for a better movement of head. Semoyuria indicate the gradual transition from a labyrinthodont amphibian to reptile, and they are 5 foot long cotylosaurus fossils. Besides this, the Limnoceles, the stem reptiles included Limnoceles, was found in Mexico, that has large premaxillary teeth and long tail. देन आपका आता है पैराप्सिड्स. पैराप्सिड्स की क्या इंपॉर्टेंस है कि उसमें सुपीरियर टेम्पोरल वैक्यूटी यानी ओपनिंग प्रेजेंट होती है स्कल में, एंड वर एडेप्टेड फॉर अ एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ. पैरासिट्स के अंदर आपके जो एनिमल आता है, रेप्टाइल आता है, दैट इज़ द प्लीसियोसॉरस. प्लीसियोसॉरस वाज अ मैराइन, ये मराइन हैबिट के होते हैं और इनकी लॉन्ग नेक होती है, एंड दे आर फिश ईटिंग विथ 15 मीटर लॉन्ग फ्यूजिफॉर्म बॉडी. फ्यूजिफॉर्म बॉडी दैट मीन्स इट लुक लाइक जस्ट एज अ स्पिंडल शेप्ड, शॉर्ट टेल एंड पैडल लाइक लिम्स मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग. स्कल यहाँ पे यूरेप्सिड टाइप विथ सुपीरियर टेम्पोरल वैक्यूटी, और जो इसके फोसिल्स हैं फाउंड in a lower Jurassic, and they believed to have become extinct, and they become extinct in the end of Cretaceous mass extinction. Then the second reptile under the parapsids are ichthyosaurs. जैसे कि इसका नाम है ichthyo, that means related to a fish that had fish like body with 4 limbs. The 4 limbs are modified into a paddle like fins, and hind limb disappeared. देयर वॉज अ डॉर्सल फ्लैशी फिन. कॉडल फिन इनके लार्ज होते हैं और बाइलोब्ड होते हैं. बाइलोब्ड यानी डॉर्सल और वेंट्रल लोब, 2 लोब्स होते हैं, सो कॉल्ड बाइलोब. जॉज इनके प्रोजेक्टेड होते हैं, दैट मीन्स प्रोट्रूडेड होते हैं इनटू इलोंगेटेड स्नाउट में, और जो टीथ यहाँ पे हैं वो होमोडोंट है, मतलब एक जैसे हैं. ठीक है. एंड द अडेप्टेशन फॉर फिश कैचिंग, and they are adapted for fish catching. Skull was parapsid type. Skull इनका parapsid type का है with additional post frontal and supra temporal bones behind the eye orbit. Eye orbit के पीछे जो additional post frontal और supra temporal bones present होती हैं. ठीक है. Vertebral column became secondarily simplified with amphicoelous vertebra. जो वर्टिबल कॉलम है वो शो करता है एम्फीसीलस वर्टिब्रा को. एम्फीसीलस का मतलब, एम्फी का मतलब बोथ एंड सीलस मीन्स सेंट्रम, यानी कि जो इसका सेंट्रम है दोनों साइड से कॉनकेव होता है, सो ऑल्सो कॉल्ड बाइकॉनकेव. तो वर्टिबल कॉलम बिकम अ सेकेंडरी सिंप्लीफाइड विथ बाइकॉनकेव वर्टिब्रा. एम्फीसीलस इज ऑल्सो कॉल्ड अ बाइकॉनकेव वर्टिब्रा. देन आपका था सिनेप्सिड्स. Synapsid from a primitive reptilian stock very early in evolution, perhaps in the middle Carboniferous period. Synapsids started developing. Synapses started developing. They developed some mammalian characteristic that enable them to
fleet-footed and active. They are active predator. Their legs commence to move under the body. और जो यहाँ पे डेंटिशन है यहाँ पे हेट्रोडोंट टाइप का है. हेट्रोडोंट मीन्स यहाँ पे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर ये सब प्रेजेंट होती है. और जो पैलेट होती है यहाँ पे फॉल्स होती है. पैलेट मीन्स द रूफ ऑफ माउथ, ठीक है, विच कैन सेपरेट द नोज विद ओरल कैविटी. सो द हेट्रोडेंटिशन एंड द फॉल्स palate started developing in pelycosaurs and had completely formed in a therapsids. The two types of synapsids occurred from a Carboniferous period to Permian, namely the primitive pelycosaurs and advanced therapsids. That means synapsids के अंदर दो तरह के primitive जो reptiles थे, that is pelycosaurs and advanced therapsids. So the pelycosaurs represent the Dimetrodon, whose fossils were discovered from North America and Russia from a late Carboniferous to a Permian period. They were the primitive reptile-like animal in which the limbs had moved under the body but not completely, and each limb have 5 digits with claws. जो मेन इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनकी जो न्यूरल स्पाइन बैक में होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है. सो कॉल्ड द न्यूरल स्पाइन ऑन द बैक वर एक्सेसिवली लॉन्ग स्ट्रेचिंग, हाईली वेस्कुलर. जो स्किन है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड है बिटवीन दैम दैट फॉर्म्ड अ फिन लाइक एंड सेल लाइक स्ट्रक्चर. दे हैड, यहाँ पे जो डेंटिशन है हेट्रोडोंट है, यानी कि सारे टीथ एक जैसे नहीं हैं शेप साइज में. दैट मीन्स इंसीजर हैं कुछ, उसमें कैनाइंस हैं, और मोलर्स क्लियरली डिफाइंड, बट द फॉल्स पैलेट हैड नॉट बीन कम्प्लीटली फॉर्म. लेकिन यहाँ पे जो रूफ है, माउथ की जो रूफ है वो कम्प्लीटली फॉर्म नहीं होती, ठीक है. देन आपका आता है इसी के अंदर थेरेप्सिड्स. थेरेप्सिड ज़्यादा एडवांस फॉर्म है रेप्टाइल्स की, ठीक है. जो जिसमें कि एंडोथर्मिक एनिमल आया, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही हाई है. एंडोथर्मिक जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड नहीं करते एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. उनका जो टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे नहीं डिपेंड करता. दे कैपेबल टू चेंज देयर एनवायरनमेंट, ठीक है. They capable to change their temperature, ठीक है, against the environment. They are independent to environment. Then heterodont dentition with false palate allowed these animals to chew and grind food for quick digestion in the gut, so that high metabolic demand of the body could be fulfilled. जो इनके जॉ मसल्स हैं that can attach to a zygomatic arc, यानी कि चीक बोन से, to make the chewing effective, जिसके कारण ये chewing की प्रोसेस है इजीली कर पाते हैं. इसमें जो थेरेप्सिड्स में जो कार्निवोर्स होते हैं उनको साइनोडोंट्स कहते हैं, और जो हर्बीवोर्स होते हैं इनको डाइसाइनोडोंट्स बोलते हैं. देन आपका आ जाता है थीकोडोंट. थीकोडोंट इवॉल्व हुए हैं सौरेप्सिड और आर्क्योसॉरियस से, ए ग्रुप ऑफ इनसिग्निफिकेंट लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स दैट सर्वाइव द ट्रायसिक मास एक्सटेंशन. और इनमें जो है इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे बाईपेडल यानी 2 लिम्ब से जो लोकोमोशन है, यानी कि बाईपेडल, एंड हाईली एजाइल प्रीडेटर. एजाइल मीन्स हाईली एक्टिव प्रीडेटर. दे आर हाईली एक्टिव प्रीडेटर. Euprachyria and the Ornithosaurus fossils were unearthed, that means found from South Africa and Europe. They were about 2 feet long. They have also bipedal locomotion, lizard-like, small head but very long tail. The tail is mainly for balancing, so they easily chase the flying insect by a rapid running. And they are also endothermy. Endothermy must have evolved in a thecodont to meet their extraordinary energy demand of their predator lifestyle. Then the next is a Saurischian. Saurischian, they were the dinosaur. They just look like a lizard, and their pelvic girdle, in which the ischium and pubic bone radiate away from each other. These two bones are radiate from each other. These two bones are present in a pelvic girdle. These radiate away from each other. And Saurischian have both type of locomotion, the bipedal and quadrupedal. Bipedal related to 2 limbs and the quadrupedal related to a 4 limb. So they have both type of locomotion, bipedal and quadrupedal, and the carnivores and as well as herbivores. Then next is the ornithischian. Ornithischian,
जैसे कि इसका नाम ही है ऑर्निथिशियन। ऑर्नी, जैसे हम बर्ड्स की स्टडी ऑर्निथोलॉजी में करते हैं, तो यहाँ ऑर्नी का मतलब बर्ड से है, यानी कि ये जो रेप्टाइल्स हैं, डायनासोर्स हैं, ये बर्ड लाइक होते हैं। और इनकी जो पेल्विक गर्डल है उसमें ईस्टियम और प्यूबिस बोन जो हैं दैट कैन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटीरियर एज फाउंड इन अ मॉडर्न बर्ड्स. These were also highly diverse carnivores as well as herbivores, and they have both the bipedal and quadrupedal locomotion. Then term Pterosauria. Pterosauria, दे वर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग डायनासोर, ये उड़ने वाले डायनासोर हैं, ठीक है, जस्ट लाइक अ स्पैरोसाइज्ड। इनको टेराडोन कहा गया, मेसोजोइक एरा में ये आए, हैविंग अ विंग स्पैन ऑफ 8 मीटर, ठीक है। और क्योंकि ये उड़ सकते थे तो जो इनकी बोन्स हैं, यहाँ पे टर्म यूज़ करिए न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स दैट मीन्स जहाँ पे एयर से प्रेजेंट होती है, हल्की होती है बोन्स, इसीलिए ये इजीली उड़ पाते हैं, ठीक है। लास्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग एंड सर्व टू अटैच द मेम्ब्रेनस पैटेजियम बिटवीन द पैटेजियम, जैसे आपने बैट में भी देखा होगा, पैटेजियम मतलब विंग, और उसमें उसी से जाते हुए आपके फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब एंड द बॉडी। हाइंड लिम्ब्स वर यूज्ड फॉर अ क्लिंगिंग, अच्छी तरह से पकड़ के लिए हाइंड लिम्ब्स यूज़ करे जाते थे। हाइंड लिम्ब यूज फॉर क्लिंगिंग ऑन द रॉक and cliff, and 3 digits of 4 limbs also have a curved claws, an adaptation for a clinging. Their jaws, जिनके जो jaws हैं वो modified हो जाते हैं beak में, that possess the homodont dentition, but pterodon did not have teeth.